Hello, investors and traders. Welcome back to the new video on a company which is doing pretty well, fundamentally very sound company, and the company's name is Polycab India Limited. So we are going to discuss about the fundamentals of this company. What is the sector outlook for the next few years? Currently, what is the size of this sector? How much growth that this sector is going to see because of various uh, industries which it is catering to, and what sort of growth that we will see in the sales of this company. So before we go into in depth into a particular company, first what I would like to say is, in any company, if you want to research, first you have to look at the market size of that sector. Okay, so first of all, what is the sector outlook, and then what are the key triggers? Okay, what are the tailwinds for that sector, how that sector is going to grow over the next 5 to 10 years. Because see, the companies which are operating in the sector will grow if the sector grows. Okay, so first we have to see how the sector is growing currently, what is the size of the sector, and how that sector is going to grow, and how the companies within that sector, who are these companies within the cables and wire sector, and how they are going to do grow in future, and how the sector is going to grow, and how the industries which it is catering to, how they are going to grow. So first you get a macro picture first, and then we look at the individual company highlights. So before we go ahead, I would like to state that this is just a disclaimer that this is not a buy or sell recommendation on Polycab. We are just going to look at the fundamentals of Polycab, how this company is faring, how it has fared in the last quarter, what has happened in the few months in Polycab, what is the growth rate, top line growth rate, and what are the margins, what is the profits in the last quarter it has shown, and who are the key competitors of Polycab, what is the raw material that prices that fluctuate, because of which their margins get impacted. So how the raw materials are faring. So this is a complete picture on the cables and wires industry that we are going to look at, and then we'll come back to the individual company, which is Polycab. So the India's cables, wires and cables market size is projected to grow at a CAGR of 14.2% during 24 to 30. So 2024 और 2030 के बीच 14.5% का CAGR, which is very good. So the market size of these sector, cables and wire sector, is going to grow at 14.2%. India's wires and cable sector will grow at the back of rapid growing investment by government towards development of infrastructure projects. So इसमें क्या होता है कि वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्यों होगी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी सारे आएंगे जिसमें दिस केबल्स एंड वायर्स आर गोइंग टू बी यूज्ड. So currently India's cables and wire market size, currently it is 1083.71 billion, okay, in 2023. So that is basically around 1 lakh crore market size currently, and it is projected to go at around 14.5% between 24 and 2032 to reach 3,65,000. सो द व्हाट आर द की टेकअवेज मींस व्हाट इसमें क्या क्यों ऐसे ग्रो होगी, क्योंकि डिमांड फॉर वायर्स एंड केबल्स इज एक्सपेक्टेड टू रैंप अप बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन. द पावर जनरेशन कैपेसिटी जैसे इंक्रीज होगी तो पावर के लिए आपको हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वायर्स तो लगेंगे, केबल्स लगेंगे. तो उसके लिए बिकॉज पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपको केबल्स एंड वायर बिजनेस भी अच्छा होगा. तो पॉलीकैब, केईआई, जो भी इसमें प्लेयर्स है उनका भी सेल्स बढ़ेगा. Upgrading of transmission distribution infrastructure, rising investments in metro railways and smart grid initiatives, and the growing data center sector. So all these are going to see the huge growth in the wires and cables sector. Polycab India is and KEI Havells India are few companies which are operating in the sector. So Polycab एक है, KEI Industries है और Havells है. The anticipated increase in urbanization commercialization is assessed to simulate investment in the real estate sector, leading to higher demand for low voltage insulated wires and cables. So इसमें कैसे होता है, एक तो हाई वोल्टेज है जो पावर सेक्टर में यूज होता है, एक तो लो वोल्टेज है तो रियल एस्टेट सेक्टर में यूज हो रहा है. तो दोनों में अगर ग्रोथ होगी, रियल एस्टेट में ग्रोथ होगी, पावर सेक्टर में ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली वायर्स एंड केबल्स में ग्रोथ होने वाली है. तो मार्केट सेगमेंटेशन इंडियन वायर्स एंड केबल्स मार्केट का, जिसमें मार्केट ब्रेकअप क्या है और कैटेगरीज क्या है. एक तो वोल्टेज है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज. Then which are the products? Cable, power cables, building wires,
flexible wires and cables, EHV cables, control instrumentation cable and others. What are the materials? कॉपर, एल्यूमिनियम, अदर. सो बेसिकली इसमें एक चीज देखना है आपको कि कॉपर की प्राइस बढ़ गई तो इनका रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने वाला है और मार्जिन उसका कम होने वाला है. एल्यूमिनियम की प्राइस बढ़ गई तो एल्यूमिनियम से उनका मार्जिन कम होने वाला है. सो मटेरियल रॉ मटेरियल प्राइस का फ्लक्चुएट जैसे होंगे वैसे इनके मार्जिन फ्लक्चुएट होने वाले हैं. अगर वो पास ऑन नहीं कर सकते, प्राइसिंग पावर अगर है उनकी में, तो वो पास ऑन करेंगे कॉपर के हाई प्राइजेस. अगर कॉपर के प्राइजेस अगर स्टेडी रहते हैं तो इनको प्रॉफिट भी वैसे रहेगा. तो रॉ मटेरियल प्राइस इज गोइंग टू प्ले की रोल इन देयर डिटरमिनिंग द मार्जिन्स. अगर उनका पास ऑन कर सकते हैं तो अच्छा ही. एंड यूज कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, पावर, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस. तो ये एंड यूज है. तो ये एंड यूज सेक्टर से इनको ऑर्डर मिलने वाली है. रीजन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट. एंड हु आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वायर्स एंड केबल्स आर one is Finolex cables, Polycab, Havells and KE Industries. So high demand for high voltage cables from end user like telecom, power distribution, oil and gas, aerospace and defense. तो ये मेजर फैक्टर है जिससे ये पूरा सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है. पावर जनरेशन होगा, टेलीकॉम में अगर पावर लगते हैं, ऑयल एंड गैस में पावर्स एंड केबल लगते हैं, एरोस्पेस में लगते हैं, डिफेंस में लगते हैं. तो ये सब सेक्टर से आप अगर डिमांड आएगी तो ये सब कंपनीज को काफी सारा ऑर्डर्स मिल सकता है. वो एंड यूजर्स एरोस्पेस एंड डिफेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, एनर्जी एंड पावर, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, अदर्स. और चैलेंजेस मैंने पहले ही बताया कि अगर वोलेटिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स प्राइसेस अगर होती है कॉपर और एल्यूमिनियम जो अदर मटेरियल्स की, तो इससे इन लोग का मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है. नाउ लेट अस लुक एट द इंडिविजुअल कंपनी विच इज पॉलीकैब. पॉलीकैब का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं. उसके की हाईलाइट्स ऐसा है कि इसका जो Q4 का जो रिजल्ट आया था जिसमें 29% वाई ग्रोथ है टॉप लाइन में. तो रेवेन्यू ग्रोथ 29% YOY, वेरी गुड, एक्सीलेंट. 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. एंड ऑन अ ईयरली बेसिस 28%, तो 28% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ऑन अ ईयरली बेसिस. और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 29% YOY और 29% QOQ. तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है. ऑपरेटिंग एबिटा देखोगे तो 26% YOY, 34% QOQ एंड 35% YOY. प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे तो 29% इट हैज इम्प्रूव्ड ऑन वाई बेसिस, बट क्वार्टर में 33% बढ़ा है. तो ये मार्च क्वार्टर का बहुत बढ़िया क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है इसका. और ईयरली बेसिस आप देखो तो 41% वाई. इसमें आप देखोगे तो रेवेन्यू कैसे इंप्रूव हुआ है. Q4 23 में जो रेवेन्यू था उसके बाद Q4 FY24 में जंप हुआ है. और ईयरली बेसिस आप देखोगे तो 1,41,000 का से 1,80,000. तो FY24 में अराउंड 28% ग्रोथ है. एबिटा का भी आप देखोगे 35% ग्रोथ है. यहाँ आप देखोगे 35% ग्रोथ है. और पैट में देखोगे तो FY24 का पैट है 18,000. सो दैट इज अराउंड 41% ग्रोथ. रोबस्ट डिमांड लेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली इन वायर्स एंड केबल बिजनेस हेल्प्ड रेवेन्यूज रजिस्टर 28% YOY ग्रोथ. सो पॉलीकैब की बात चल रही है इसमें. तो पॉलीकैब में 28% YOY, 29% YOY एंड 28% YOY in quarter results and 29% on yearly basis. So company surpassed milestone of 180 billion revenues. Okay, so ये बहुत बढ़िया milestone है. EBITDA margin improved by 70 basis points to 13.8%. Okay, वो भी अच्छा पैरामीटर है. PAT grew है 41%, वो भी बहुत बढ़िया है. उसके बाद की हाईलाइट्स में आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट शेयर, सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन्स इन डोमेस्टिक ऑर्गेनाइज केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री वायर स्ट्रेटेजिक इंटरनल इनिशिएटिव्स. तो इसमें मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 22 to 24% से 25 to 26%. तो ये बहुत बढ़िया है पॉलीकैब के लिए, मार्केट शेयर बड़ा है. एबिटा मार्जिन 13.1 से 13.8 है. सो 70 बिप्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया है. कैपेक्स में आप देखोगे तो सबसे बेस्ट है कि 4.6 बिलियन से आपका 8.6 बिलियन आप देखोगे तो 87% इंक्रीज इन कैपेक्स. तो ये कैपेक्स का जो है ये इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है जिससे कैश फ्लो रीइन्वेस्टेड इन बिजनेस. जो भी कैश फ्लोज आते हैं वो रीइन्वेस्ट किया इन्होंने बिजनेस में. सो जिससे उन लोग जो से डिमांड इंप्रूव होगा तो उसके लिए दे आर रेडी टू डू द बिजनेस फॉर द हायर डिमांड. डिविडेंड भी अच्छा उन्होंने दिया है. देन प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो वायर्स एंड केबल्स 88% का ये है. FMEG अगर देखोगे तो इट इज अराउंड 7%, अदर्स इज 5%. और डोमेस्टिक बिजनेस इज अराउंड 92% पॉलीकैब का और इंटरनेशनल अराउंड 8%.
यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी सिंस लिस्टिंग के कंपैरिजन किया है कि लिस्टिंग के बाद कैसे इंप्रूव हुआ है। तो इसमें रेवेन्यू भी देखोगे तो 18% CAGR से इंप्रूव हुआ है, मार्जिन 190 बिप्स से इंप्रूव हुआ है, नेट कैश ऑल्सो काफ़ी सारा इंप्रूव हुआ है। जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है तो वो बहुत अच्छा है। मार्केट शेयर आप देखोगे तो अराउंड 18 से 25 टू 26% मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया फिगर है मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट का, और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दिया है। शेयर होल्डर रिटर्न्स, तो ये सिर्फ मैं इसके लिए खाली इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इसमें शेयर प्राइस कैसे मूव हुआ है। इसमें कोई इंडिकेशन या तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर है ये। तो एक सिर्फ दिखा रहा है कि आपका प्राइस कैसे मूव हुआ है। अभी आप देखो कि यहाँ पे ये प्राइस जो क्रैश हुआ है यहाँ पे, यहाँ से 5300 से लेकर अराउंड 3900 तक ये जो क्रैश हुआ है, ये क्रैश बिकॉज देयर वाज सम ईडी रेड ऑन द कंपनी बिकॉज सम कैश सेल्स वेर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन उसके बाद दिस वाज सॉर्टेड और ये फिर से अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये सिर्फ वी आर सीइंग द हाउ द पॉलीकैप वर्सेस अदर इंडेक्सेस, निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स सबको बीट किया है पॉलीकैप में। अगर आप लॉन्गर टर्म होराइजन देखोगे, अगर जितना लंबा रखोगे शेयर्स उतना आपको आउट परफॉर्मेंस ज्यादा दिखेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो आउट परफॉर्मेंस कम है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप ज्यादा लंबा होल्ड करोगे तो आउट परफॉर्म बढ़ रहा है, देखो इंडेक्स के कंपैरिजन में। और अभी आप देखोगे तो इंडेक्स यहाँ पे कितना है और यहाँ पॉलीकैप ने कितना रिटर्न दिया है, 886% रिटर्न सिंस लिस्टिंग, वेयर एज इंडेक्स हैज गिवन दिस मच परसेंट। तो ये बहुत बढ़िया है। उसमें दिस इज अ वायर्स एंड केबल्स सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है। रेवेन्यू आप देखोगे तो FY Q4 का रेवेन्यू, उसके बाद में FY 24 ईयरली रेवेन्यू है। EBIT मार्जिन आप देखोगे तो ये पहले हम लोग डिस्कस किया है। तो वायर्स एंड केबल्स रेवेन्यू विल ग्रो एट 27% YY and 22% YY. So strong volume growth in domestic business supported by government and private capex and uptick in real estate as well as strategic internal initiatives help the company get significant market. इसमें अब देखना है कि गवर्नमेंट से ऑर्डर आ रहे हैं, प्राइवेट कैपेक्स से उनके यहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, रियल एस्टेट से ऑर्डर आ रहे हैं, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं इसको। तो ये ऑर्डर काफी सारा आ रहे हैं, तो इनको डिमांड बहुत अच्छा है। तो डिमांड इज अ बिग टेलविंड फॉर पॉलीकैम। Domestically, the distribution will continue to show robust growth momentum. Institutional business start accelerate action. रेवेन्यू आप देखोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस से भी काफी सारा बाउंस बैक हुआ है, 60% सिक्वेंशियल ग्रोथ है, ये काफी अच्छा है। फिर नेक्स्ट अगर डोमेस्टिक जोन वाइज देखोगे तो आपको वेस्ट में 21% ग्रो हो रहा है, साउथ में 29, नॉर्थ में 29 एंड ईस्ट में 21। इंटरनेशनल आप देखोगे तो ये बिजनेस मेनली ये डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनी है। सो दिस इज बेसिकली पावरिंग द इंडिया डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी थर्मल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेलवेज के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोड्स एंड हाईवे के है, ये सब ये जो इंडस्ट्रीज जो है यहाँ से इनको इसका ग्रोथ होने वाला है। सो बेसिकली स्पेशलाइज प्रोजेक्ट डिफेंस में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, माइनिंग में आ रहे हैं, टनल्स में आ रहे, टेम्पल है अयोध्या राम मंदिर का। तो ये सब चीज मॉल्स है, कमर्शियल एंड अर्बन डेवलपमेंट में मॉल है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, कमर्शियल बिल्डिंग्स है। तो यहाँ से एनर्जी पावर, यहाँ से सब इनका ये जगह, ये पूरा जो यहाँ पे जो ये लिखा है इसमें से इनको ऑर्डर मिलने वाले हैं। यहाँ जो जैसे ग्रोथ होगी पॉलीकैप की ग्रोथ होने वाली है। FMEG बिजनेस आप देखोगे तो डिसेंट ग्रोथ इन सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। FMEG बिजनेस कंट्रीब्यूटेड अराउंड 17% YOY। तो ये FMEG थोड़ा और टाइम लगेगा इसको इंप्रूव होने में। और अदर्स में आप देखोगे तो अदर इज लार्जली कंप्राइज ऑफ EPC बिजनेस। FY 26 के गोल्स आप देखोगे तो ये कस्टमर सेंट्रिसिटी है, गो टू मार्केट एक्सीलेंस, विनिंग द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनेबलर्स। सो ये सब ये उनका FY 26 के गोल्स है कंपनी के, ठीक है ना।